السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اس کتاب کی تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں کوشچن نمبر 51 سے 75 تک پڑھایا جائے گا۔ سیرت النبی کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان میں جو 4th 5th 6th کلاس کے ہیں ان کو ایگزام کی تیاری کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے اور اس کو ہم ویڈیو کے ذریعے پڑھا رہے ہیں تاکہ ان کو تیاری کرنے میں آسانی ہو۔ ہر ویڈیو میں 25 سوال اور ان کے جواب پڑھائے جا رہے ہیں۔ 2 ویڈیوز ہو چکی ہیں، تیسری ویڈیو ہے اور اس میں کوشچن نمبر 51 سے پڑھایا جائے گا۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 51، شروع میں مسلمان ہونے والے چند مردوں اور عورتوں کے نام کیا ہیں؟ آنسر دیکھیے، حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت ام الفضل، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ شروع میں اسلام قبول کرنے والوں کے چند نام ہیں۔ کوشچن نمبر 52، شروع میں مسلمان ہونے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی ایک الگ نام ہے، کیا ہے دیکھیے۔ شروع میں مسلمان ہونے والوں کو سابقین اولین کہتے ہیں۔ سابقین اولین شروع میں مسلمان ہونے والوں کو کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 53، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان بننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مرد حضرات مسلمان ہوئے انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، اور جو عورتیں مسلمان ہوئیں انہیں صحابیات کہتے ہیں۔ صحابہ کرام اور صحابیات۔ اگلا، مکہ کے کافروں نے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آنسر دیکھیے، مکہ کے کافروں نے مسلمان ہونے والوں پر بہت ظلم کیا، انہیں مارا پیٹا، شدید زخمی کیا، جان سے مارنے کی کوشش کی اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ کوشچن نمبر 55، چند صحابہ کرام کے نام بتائیں جن پر کفار مکہ نے بہت ظلم کیا۔ ان کے نام دیکھیں۔ آنسر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اگلا سوال، اسلام میں سب سے پہلے کس کی شہادت ہوئی؟ یعنی اسلام کے لیے کس کی جان سب سے پہلے گئی؟ کافروں نے سب سے پہلے کس مسلمان کو مارا؟ اسلام میں سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو ابو جہل نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اگلا سوال، کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہی کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ کو جادوگر، شاعر اور پاگل دیوانہ کہتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ پر کچرا ڈالتے اور آپ کے دروازے پر جانوروں کا خون ڈالتے۔ اگلا سوال دیکھیں، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا؟ آنسر دیکھیے، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑ کر ملک حبشہ چلے گئے۔
अगला सवाल, मुसलमानों ने मुल्क हबशा की तरफ कितने बार हिजरत की? जवाब, मुसलमानों ने मुल्क हबशा की तरफ 2 बार हिजरत की। अगला क्वेश्चन, पहली बार कितने मुसलमानों ने हिजरत की और दूसरी बार कितने मुसलमानों ने हिजरत की? जवाब, पहली बार 15 और दूसरी बार 82 मुसलमानों ने हिजरत की। कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों का बायकाट कितने साल किया? कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों का 3 साल तक बायकाट किया। कोई मुसलमानों से मिलेंगे नहीं, उनको खाने पीने की चीज़ नहीं बेचेंगे, उनको खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं देंगे, उनसे रिश्ता भी नहीं करेंगे। इस तरह बिल्कुल मुआशरे से अलग करके रख दिया उनको ताकि वो इस्लाम छोड़ दें, मगर मुसलमानों ने इस्लाम नहीं छोड़ा। बायकाट में क्या फ़ैसला हुआ था? देखिए, बायकाट में ये फ़ैसला हुआ था कि मक्का का कोई भी शख्स मुसलमानों से सलाम कलाम ना करे, उनको कोई खाने पीने की चीज़ें ना बेचे और उनसे कोई हमदर्दाना सलूक ना करे। क्वेश्चन नंबर 63, बायकाट के 3 साल मुसलमानों ने कहाँ गुजारे? आंसर, बायकाट के 3 साल मुसलमानों ने शेब अबी तालिब में गुजारे। अगला सवाल, आमुल हुज़्न यानी गम का साल, इससे पहले भी मैंने बताया था, आम अरबी में साल को कहते हैं, हुज़्न गम को कहते हैं। गम का साल किस साल को कहते हैं? जवाब, नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न कहते हैं, क्योंकि इस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, और ये दोनों हुजूर को बहुत महबूब थे, तो इन दोनों के एक साथ विसाल से हुजूर को बहुत गम लाहिक हुआ, इसीलिए वो साल ही गम का साल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 65, बैत अक़बा किसको कहते हैं? बैत अक़बा, बैत माने वादा करना, अक़बा वो जगह का नाम है जहाँ ये वादा किया गया था। देखिए, ऐलान नबूवत के 13वें साल मदीना के 72 लोगों ने मक्का मुकर्रमा आकर इस्लाम कबूल किया। हुजूर और मुसलमानों ने मदीने को अपना वतन हुजूर और मुसलमानों को मदीने को अपना वतन बनाने की दावत दी और इस्लाम के लिए जानो माल की कुर्बानी देने का वादा किया। इसी को बैत अक़बा कहते हैं। अगला सवाल, हिजरत किसको कहते हैं? जवाब, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के 13वें साल मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, इसी को हिजरत कहते हैं। अगला सवाल, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जवाब देखिए, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। क्वेश्चन नंबर 68, मक्का मुकर्रमा से जो सहाबाए किराम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मक्का मुकर्रमा से जो सहाबाए किराम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए उन्हें मुहाजिरीन कहते हैं। मुहाजिरीन यानी मक्का छोड़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 69, मदीना मुनव्वरा के सहाबाए किराम को क्या कहते हैं? जवाब, मदीना मुनव्वरा के सहाबाए किराम को अंसार कहते हैं। मक्का मुकर्रमा के जो थे वो मुहाजिरीन, मदीना मुनव्वरा के अंसार। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अक़द मुआख़ात किसको कहते हैं? अक़द मुआख़ात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुहाजिर सहाबी को किसी एक अंसारी सहाबी का भाई बना दिया, इसी को अक़द मुआख़ात यानी भाईचारे का मामला कहते हैं। मक्का छोड़ के जो सहाबा आए थे वो अकेले थे, तो उनमें से हर एक को मदीने के किसी सहाबी का भाई बना दिया हुजूर ने, तो ये भाईचारे का मामला, इसी को कहते हैं अक़द मुआख़ात। अक़द माने एग्रीमेंट, मुआख़ात माने भाई भाई बनाना, भाई भाई बनाने का एग्रीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 71, मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मेहमान हुए? जवाब, मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु के मेहमान हुए। क्वेश्चन नंबर 72, हिजरत से पहले मुसलमानों का क़िबला क्या था? जवाब, हिजरत से पहले मुसलमानों का क़िबला खाना काबा था। क़िबला किसको कहते हैं? हम नमाज में जिधर रुख करते हैं, जिधर मुंह करके खड़े होते हैं, उस जानिब को क़िबला कहते हैं। तो हिजरत से पहले यानी हुजूर जब मक्का में थे तो क़िबला क्या था? खाना काबा था। अगला सवाल देखिए, हिजरत के बाद मुसलमानों का क़िबला क्या था? जवाब, हिजरत के बाद यानी हुजूर जब मदीना मुनव्वरा आ गए तो मुसलमानों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, यानी मस्जिद अक़सा जो फ़लस्तीन में है, बैतुल मुक़द्दस क़िबला बना। क्वेश्चन नंबर 74, बैतुल मुक़द्दस कितने अरसे तक मुसलमानों का क़िबला था? जवाब, 16 या 17 महीनों तक। तो जब तक हुजूर मक्का में थे खाना काबा क़िबला था, जब मदीना मुनव्वरा आए तो 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस क़िबला था। फिर देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 75, तहवील क़िबला किसको कहते हैं? तहवील माने बदल देना, क़िबला माने क़िबला। अभी बताया मैंने किसको कहते हैं क़िबला। बैतुल मुक़द्दस के बजाय फिर खाने काबा ही को हमेशा के लिए क़िबला बना दिया गया, इसी को तहवील क़िबला कहते हैं। तो ये तहवील क़िबला यानी कि क़िबला बदल देना। तो क़िबला था बैतुल मुक़द्दस, बदल कर फिर खाने काबा बना दिया गया, इसी को कहते हैं तहवील क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वीडियो के भी 25 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। बहुत आसान किताब है। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका माना मैंने बयान कर दिया, जहाँ कुछ मुश्किल थी तशरीह भी मैंने कर दी। इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें। ये छोटे बच्चों के लिए है, 4th, 5th, 6th क्लास के लिए। अच्छी तरह से सवाल जवाब पढ़ लें। वहाँ सवाल रहेगा, 4 जवाब रहेंगे, सही जवाब को निशान लगाना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।